shining stars, welcome back to my channel. First of all, I would like to say sorry to each one of you for not posting any videos. I know it's been a long time, but also I have certain reasons for that I'm not posting any videos. It might take time to complete this series, but trust me, I will definitely complete it. And I will try to post videos as soon as possible. So for those who are new to this channel, please subscribe it and also hit the bell icon for further notification. So without a further ado, let's start this video. So our question is, a synchronous generator is connected to an infinite bus and is initially operating at a lagging power factor. If the steam input to the alternator is increased, then the options are the power factor of the alternator improves, reactive power decreases, the frequency increases and A and B collectively. ठीक है. So इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है that there is one synchronous generator. Synchronous generator infinite bus bar पे connected है and also it is operating at lagging power factor. So power factor कैसा है? It is lagging power factor and here we have been given one condition कि अगर हमने steam input को increase कर दिए then what is going to be the effect that we need to know one by one. ठीक है. So सबसे पहले I would like to write here for synchronous generator and later on I'll write for synchronous motor. ठीक है. So first one we have here is synchronous generator. Synchronous generator. ठीक है. So synchronous generator के केस में we have two different power factor. First one is lagging power factor and second one we have leading power factor. So सबसे पहले मैं lagging power factor के लिए लिखूंगी and उसके बाद में हम leading के लिए लिखेंगे. ठीक है. Here lagging and here is going to be leading. So I'll just write here certain equation. So first equation is that अगर steam input हमने increase कर दिए, ठीक है, अगर हमने steam input या फिर mechanical input हम उसे कह सकते हैं. So steam input को अगर हमने increase कर दिया then it is directly proportional to the load. So steam input is directly proportional to load. अगर steam input को increase कर दिया then load is going to be increase in case of lagging power factor and also load is directly proportional to power factor. ठीक है. Load is directly proportional to power factor. And also we have power factor is directly proportional to armature current and also it is directly proportional to del, is directly proportional to TEM and is inversely proportional to reactive power. So this is going to be the one equation और इस इक्वेशन से आप जितने भी जो भी क्वेश्चंस आएंगे उससे आप सॉल्व कर सकेंगे इजीली. अगर हमें बोला गया कि लैगिंग पावर फैक्टर है और अगर हमने स्टीम इनपुट को इंक्रीज कर दिया then what is going to be the power factor? So power factor is going to improve because directly proportionality है ना. So steam input अगर increase करेगा then power factor is also going to be increase. So this is for synchronous generator in case of lagging power factor. अगर leading power factor है, so leading power factor के केस में क्या होने वाला है? So leading power factor के केस में we have same equation, बस उसमें कुछ modifications होने वाले. ठीक है. So steam input is directly proportional to load. Is directly proportional to load. But load is inversely proportional to power factor या फिर power factor is inversely proportional to load. Also we have same thing जो हमने यहाँ पूरा ये लिखा है same you have to just copy and paste here. So is directly proportional to IA, then del and then we have TEM और आपको पता है कि पावर फैक्टर और रिएक्टिव पावर इन दोनों का रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है. अगर 1 by पावर फैक्टर है then we are going to get here Q. ठीक है. So this is going to be for synchronous generator leading power factor case. अगर हमें मोटर के लिए लिखना होगा then what we can write here?
So for motor we have same equation. So I'll just write here 2 synchronous motor. So we have same equation, but synchronous generator के केस में जहां हमें यहाँ लैगिंग मिल रहा था, सेम यू आर गोइंग टू गेट हियर फॉर लीडिंग. और सिंक्रोनस जनरेटर के केस में जो लीडिंग पे हमें इक्वेशंस मिल रहे थे वो सेम आपको सिंक्रोनस मोटर के केस में लैगिंग पे मिलेंगे. ठीक है. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अगर हमें ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर दिया गया है, लीडिंग पावर फैक्टर दिया गया है, एंड अगर आपसे पूछा गया कि रिएक्टिव पावर में क्या चेंजेस होने वाले हैं विथ इंक्रीज इन स्टीम इनपुट. सो हमें सिंक्रोनस मोटर दिया गया है, लीडिंग पावर फैक्टर दिया गया है और स्टीम इनपुट इंक्रीज हो रहा है. सो रिएक्टिव पावर में क्या चेंजेस होने वाले हैं? अगर स्टीम इनपुट इंक्रीज हो जाएगा देन रिएक्टिव पावर इज गोइंग टू डिक्रीज. आई होप यू आर गेटिंग दिस. सो चलिए, देयर इज वन चार्ट. सो उस चार्ट को हम डिस्कस करेंगे. एज यू कैन सी हियर वी हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन. सो चलिए हम इसे वन बाय वन फिलअप कर लेंगे. So first of all, starting with generator side, और जनरेटर साइड में हम सबसे पहले लैगिंग साइड से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट किस चीज से था हमारे पास? प्राइम मूवर इनपुट के. दैट मीन्स मैकेनिकल इनपुट या फिर स्टीम इनपुट को अगर हमने इंक्रीज कर दिया, स्टीम इनपुट को अगर हमने इंक्रीज कर दिया, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट? अगर स्टीम इनपुट को इंक्रीज कर दिया देन लैगिंग साइड में, सिंक्रोनस जनरेटर के लैगिंग साइड में पावर फैक्टर भी इंक्रीज होने वाला है. पावर फैक्टर इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है. सो पावर फैक्टर इंक्रीज होगा, IA इंक्रीज होगा, Q इज गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज पावर फैक्टर एंड Q का रिलेशन कैसा है? इज इनवर्स रिलेशन. सो अगर लैगिंग साइड में जनरेटर के पावर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है then reactive power is going to decrease. Here we have active power. So active power क्या होने वाला है? अगर steam input increase हो गया, then active power is also going to increase. ठीक है. So it is going to increase and del का वैल्यू क्या होगा? del का वैल्यू भी increase हो जाएगा. ठीक है. This is for lagging side. So when we are talking about leading side, so जनरेटर के leading side में क्या क्या changes होने वाले हैं? जैसे ही हमने steam के input को increase कर दिया, अगर steam input या फिर mechanical input को हमने increase कर दिया, then as you all know कि हमने अभी देखा था that steam input is inversely proportional to power factor. अगर steam input increase हो रहा है then power factor is going to be reduced. ठीक है. power factor decrease हो जाएगा. Armature current is going to increase, Q is going to increase, P is going to increase and also del is going to increase. Steam input के increment के साथ सारे के सारे values increase हो जाएंगे except for the power factor. ठीक है. So अभी हमने जो changes देखे थे प्राइम मूवर में, हमने steam को increase कर दिया था. ठीक है. So जो भी mechanical input था उसे increase कर दिया था. अगर हमने मैकेनिकल इनपुट को डिक्रीज कर दिया देन उसके क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे आप वो फाइंड आउट कर लीजिए. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट मोटर साइड. सो मोटर साइड में क्या होने वाला है? जो लैगिंग साइड में था जनरेटर के, सेम आपको लीडिंग साइड में मिलेगा इन केस ऑफ मोटर. ठीक है. और जो लैगिंग साइड में था मोटर के, सेम आपको लीडिंग साइड ऑफ जनरेटर में मिलेगा. ठीक है. सो यहाँ आप देख सकते हो दैट मोटर एट लीडिंग पावर फैक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज, IA is going to increase, Q is going to decrease, P is going to increase and del is also going to increase. ठीक है. एट द सेम टाइम अगर हमने लैगिंग के बारे में देखा मोटर में, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट इज गोइंग टू बी स्टीम इनपुट को इंक्रीज कर दिया. स्टीम इनपुट के इंक्रीमेंट के साथ साथ लैगिंग साइड में पावर फैक्टर का क्या होने वाला है? डिक्रीमेंट होने वाला है. सो पावर फैक्टर इज गोइंग टू डिक्रीज, IA इज गोइंग टू इंक्रीज, Q इज गोइंग टू इंक्रीज, P इज गोइंग टू इंक्रीज एंड del इज गोइंग टू इंक्रीज. सो आई होप आपको ये समझ में आया जितना भी हमने यहाँ
चेंज इन प्राइम मूवर कीपिंग एक्साइटेशन कांस्टेंट के बारे में जो भी इक्वेशंस हमने देखा, आई होप आपको समझ में आया होगा एंड इन फ्यूचर आई थिंक आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी वेन एवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम। ठीक है, सो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। सो यहाँ क्या दिया गया है, लैगिंग पावर फैक्टर दिया गया है। ठीक है, लैगिंग एंड जनरेटर। So with the increase in steam input, so you have to check this one. So power factor में improvement होने वाला है क्या? So steam input को increase कर दिया, then power factor is also going to increase. So यहाँ improvement in power factor is going to happen. ठीक है, क्या रिएक्टिव पावर डिक्रीज होने वाला है? सो यस ऑब्वियसली, बिकॉज पावर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्टिव पावर भी डिक्रीज होगा। ठीक है, रिएक्टिव पावर कैसा होगा, रिएक्टिव पावर डिक्रीज होने वाला है। क्या फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस होने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज ऐसा कुछ होने वाला है? सो नो, क्यों फ्रीक्वेंसी में चेंजेस नहीं होने वाले हैं, बिकॉज बस बार पे कनेक्टेड है ना। सो वेन एवर सिंक्रोनस जनरेटर या फिर सिंक्रोनस मोटर बस बार पे कनेक्टेड हो, देन वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। सो सी इज गोइंग टू बी द रॉन्ग। ठीक है, सो जो हमारा करेक्ट आंसर आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए प्लस ऑप्शन बी, दैट मीन्स कलेक्टिवली ए एंड बी। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर फिर से सेम दिया गया है। ठीक है, सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर इज कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस, नाउ इज इनिशियली ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर। सो हमने अभी डिस्कस किया था लैगिंग के लिए, लीडिंग के लिए फॉर सिंक्रोनस मोटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर। सो चलिए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या रिजल्ट होने वाले हैं। सो लीडिंग पावर फैक्टर दिया गया है। एज यू ऑल नो कि अगर हमने स्टीम के इनपुट को इंक्रीज कर दिया, इनपुट को अगर हमने इंक्रीज कर दिया, देन लोड इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, एंड लोड और पावर फैक्टर का इनवर्स रिलेशन होने वाला है इन लीडिंग केस। ठीक है, सो यहाँ लीडिंग पावर फैक्टर दिया गया है एंड स्टीम इनपुट इंक्रीज हो गया। सो स्टीम इनपुट के इंक्रीमेंट के वजह से पावर फैक्टर डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, पावर फैक्टर डिक्रीज होगा एंड ऑल्सो वी हैव आई ए डेल टी ई एम एंड क्यू। सो लीडिंग पावर फैक्टर के केस में क्या होने वाला है, अगर हमने स्टीम इनपुट को इंक्रीज कर दिया देन पावर फैक्टर इज गोइंग टू डिक्रीज। सो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, पावर फैक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज। सो नो, पावर फैक्टर इज गोइंग टू डिक्रीज। current delivered is going to increase, so yes, current is going to increase and frequency increases, no, frequency में कोई changes नहीं होने वाले। that means only option number B is correct, so option number B is going to be the correct answer for this given question. so I hope आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देना चाहूंगी। ठीक है, अगर हमारे पास सिंक्रोनस मोटर है और वो लीडिंग पावर फैक्टर में एंड ऑल्सो लैगिंग पावर फैक्टर में वर्क कर रहा है, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑन पावर फैक्टर, व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑफ करंट, पावर फैक्टर एंड करंट। ये इसे आप सॉल्व कीजिए एंड अगर आपका सॉल्व हो गया तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर एज योर विश। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So our next question is, a 100 kilometer transmission line is designed for a nominal voltage of 132 kV and consists of one conductor per phase. The line reactance is 0.726 ohm per kilometer. The static transmission capacity of the line in megawatts would be dash. So what we have been given here that there is one transmission line और ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ कितना दिया गया है, L is equals to 100 किलोमीटर। ठीक है, नॉमिनल वोल्टेज, सो वोल्टेज कितना दिया गया है, वोल्टेज इज इक्वल्स टू 132 kV। सिमिलरली व्हाट वी हैव बीन गिवन, लाइन रिएक्टेंस x पर किलोमीटर में दिया गया है। ठीक है, सो लाइन रिएक्टेंस इज 0.726 ohms पर किलोमीटर।
Now we have to find out the capacity of line. So हम capacity कैसे find out करेंगे? So we have one formula for that. So it is going to be P is equals to V square by Z. ठीक है. So voltage कितना दिया गया है? Voltage is equals to 132 kV. So 132 kV into 132 kV divided by Z. बट Z क्या दिया गया है? वी हैव बीन गिवन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंस. रेजिस्टेंस यहाँ नहीं दिया गया है. वी ओनली हैव टू कंसिडर रिएक्टेंस. सो रिएक्टेंस कितना दिया गया है? 0.726 पर किलोमीटर. बट किलोमीटर भी दिया गया है ना. सो कितने किलोमीटर की लाइन है? इट इज 100 किलोमीटर. सो 100. ठीक है. सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, you are going to get one result, and that result is going to be P is equals to 240 megawatts. ठीक है. So option number B is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. So चलिए next question की ओर. The per unit impedance of a circuit element is 0.15. The base kVA and the base MVA are half. The new value of the per unit impedance of the circuit element will be dash. So what we have been given here, हमें कुछ values दिए गए हैं. per unit impedance का भी value दिया गया है. So per unit impedance, per unit Z का value दिया गया है, right? So Z per unit, I'll just write here like Z per unit old value, it is old value, is equals to 0.15. So base KVA and base MVA values को half किया गया है. base KVA and base MVA values को half किया गया है. So I'll just write here that KV old अगर V है, ठीक है, KV old अगर V है, so KV new को हाफ किया गया है. So it is going to be V by 2. MVA value, so MVA value old कितना दिया गया है? You have to write simply MVA. ठीक है, MVA. और MVA न्यू वैल्यू कितना है? न्यू वैल्यू इसे भी हाफ किया गया है. So I'll just write here MVA by 2. So now we have one formula to solve ZPU new value. New value हमें find out करना है. ठीक है. So it is going to be Z per unit new value is equals to Z per unit old value into MVA new divided by MVA old into KV old divided by KV new whole square. ठीक है. सो आपको इस फॉर्मूला में जो भी हमने टॉप में जितने भी वैल्यूज लिखे हैं वो आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा. देन आई जस्ट राइट हियर 0.15 into MVA new by MVA old. So new value कितना गया है? MVA by 2. So it is going to be MVA by 2 और old value कितना है? It is simply MVA into KV old का value कितना दिया गया है? It is V. So V divided by V by 2 whole square. So V will get cancel, MVA will get cancel. और जब आप इसे सॉल्व करेंगे then you are going to get 0.3 per unit. So Z per unit new का वैल्यू कितना आया है? Z per unit new का वैल्यू आया है 0.3 per unit. So option number C is only correct answer for this. So I hope आपको ये भी समझ में आया होगा. So चलिए next question की ओर. So our next question is, if the effect of earth is taken into account, then the capacitance of the line to ground is dash. So options are decreases, increases,
remains unaltered and becomes infinite. So इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दैट अगर हमने अर्थ के इफेक्ट को कंसिडर कर लिया देन व्हाट इज गोइंग टू बी द कैपेसिटेंस ऑफ लाइन टू ग्राउंड. ठीक है. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कैपेसिटेंस सो दो सिनारियोज हमारे पास आने चाहिए. ठीक है. फर्स्ट वन इफेक्ट ऑफ अर्थ. अगर हमने अर्थ के इफेक्ट को कंसिडर कर दिया then what is going to be the changes in capacitance. Also one more thing is that अगर हमने ट्रांसमिशन लाइन के हाइट को इंक्रीज कर दिया. ठीक है. अगर हमने ट्रांसमिशन लाइन के हाइट को इंक्रीज कर दिया then what is going to be the changes in capacitance with respect to that height and ground. ठीक है. So first one I am going to write here for effect of earth. First one is going to be effect of earth, and second one I am going to talk about is height of transmission line. ठीक है. अगर हमने ट्रांसमिशन लाइन के हाइट को ही इंक्रीज कर दिया then what is going to be the capacitance of line to the ground. So height, effect of transmission height, effect of transmission line height. So first one is effect of earth. ठीक है. So this is going to be the transmission line. ये हमारा transmission line है. ठीक है. And this is going to be our earth. लाइन और अर्थ के बीच में कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है. कैसे? बिकॉज लाइन और अर्थ के बीच में एयर एग्जिस्ट करता है ना. सो अगर एयर एज अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम वर्क करे देन देयर इज गोइंग टू बी द प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन लाइन एंड अर्थ. ये फिजिकली कनेक्टेड नहीं होता है बट इट इज अ वर्चुअल इफेक्ट. ठीक है. सो इट इज गोइंग टू बी वन बाय वन कैपेसिटेंस कनेक्टेड होने वाले बट इन पैरेलल वे. पैरेलली कैपेसिटेंस कनेक्टेड होने वाले. ठीक है. सो एज यू ऑल नो कि जैसे ही कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्टेड है और अगर हमने इसका इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लिया देन व्हाट इज गोइंग टू बी द इक्विवेलेंट ऑफ दिस. सो सी इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस. कैसे इंक्रीज होगा? पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है. सो इफ वी कंसिडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ देन द कैपेसिटेंस ऑफ लाइन टू द ग्राउंड इज गोइंग टू इंक्रीज. पैरेलल में कैपेसिटेंस इंक्रीज होने वाला है. सो C1, C2, C3, C4, C5, C6. ठीक है. So this is all C equivalent is going to be the summation of this individual capacitor. So summation of this individual capacitance. ठीक है. And on the other hand, effect of transmission line height अगर हमने कंसिडर कर लिया. ठीक है. ओरिजिनली हमारे पास यहाँ ट्रांसमिशन लाइन है. सो अगर मैंने ट्रांसमिशन लाइन की हाइट को इंक्रीज कर दिया एंड वी हैव ग्राउंड हियर, वी हैव ग्राउंड हियर. ठीक है. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट? सो यहाँ क्या होने वाला है? देयर इज गोइंग टू बी द सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटेंस. देयर इज गोइंग टू बी द सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटेंस. ठीक है. कैपेसिटेंस कैसे कनेक्टेड है? कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज लेंथ बहुत ज्यादा है ना. लेंथ बहुत ज्यादा होने की वजह से कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड होने वाले. सो व्हेनेवर कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज सो कैपेसिटेंस का वैल्यू डिक्रीज होगा. ठीक है. इफ आई राइट हियर C. ठीक है. अगर हमने बस this one अगर हमने इतना ही कंसिडर कर लिया then what is going to be the result? Result is going to be C equivalent का वैल्यू क्या आएगा? C equivalent is going to be C by 3. So कैपेसिटेंस कैसा? कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. कैपेसिटेंस कैसा? कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है. अगर हमने ट्रांसमिशन लाइन के हाइट को इंक्रीज कर दिया then capacitance is going to decrease. but अगर हमने अर्थ के इफेक्ट को कंसिडर कर लिया then capacitance is going to increase. ठीक है. तो यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है that effect of earth is taken
into account, then the capacitance of line to ground is going to increase. So option number B is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है. So चलिए next question की ओर. So the next question is, a single line to ground fault occurs on an unloaded generator in a phase A if x1 is equals to x2 is equals to 0.25 per unit and x naught is equals to 0.15 per unit. The reactance connected in the neutral xn is equals to 0.05 per unit. The initial pre-fault voltage is 1 per unit. Then the magnitude of the fault current is equals to dash. So यहाँ हमें क्या find out करना है? We have to find out the magnitude of fault current. But fault कैसा दिया गया है? It is line to ground, LG fault दिया गया है. ठीक है. So whenever there is LG fault, so IF fault current का value क्या होने वाला है? It is going to be 3E divided by x1 plus x2 plus x naught plus 3 times of xn. This is going to be the formula for fault current in case of LG fault. ठीक है. यहाँ आप 1 by 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. So it is going to be IF is equals to 3 into 1 divided by x1 का वैल्यू 0.5, x2 का भी वैल्यू सेम है. 0.25 plus 0.25 plus x naught का वैल्यू it is going to be 0.15. 0.15 plus 3n, 3 times of xn, 3 into 0.05 per unit. ठीक है. So when you will solve this, you are going to get one result. So that result is going to be 3 divided by 0.25 plus 0.25, it is going to be 0.5 plus 0.5 plus 0.15, it is going to be 0.65 plus 3 into 0.05, it is going to be 0.8. Overall अगर हमने calculate कर दिया, then this is going to be the value. ठीक है. और IF का वैल्यू आने वाला है, IF is going to be 3.75 per unit. So fault current का वैल्यू है 3.75 per unit. So it is an option number A. So option number A is only correct answer for this. So I hope आपको ये भी समझ में आया होगा. So our next question is, principle of equal area criteria is to be applied to determine for a given initial load P1 the maximum amount of sudden increase in load del P to maintain transient stability of a cylindrical rotor synchronous motor operating from an infinite bus. Applying this criteria, which is A1 is equals to A2, which of the following diagram is correct? So हमें इस क्वेश्चन में इक्वल एरिया क्राइटेरिया के बारे में पूछा गया है. ठीक है. सो व्हाट इज इक्वल एरिया क्राइटेरिया? सो इक्वल एरिया क्राइटेरिया ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के बारे में. ठीक है. सो इक्वल एरिया क्राइटेरियन gives absolute stability, gives the information about the absolute stability. ठीक है. So I'll just draw one figure. So guys, यहाँ मैंने already power angle curve को draw कर लिया है. ठीक है. Now we have to discuss one by one, एक एक individual point पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं हमारे सिंक्रोनस मशीन में. ठीक है. गिवन क्वेश्चन में हमें सिंक्रोनस मोटर दिया गया है. ठीक है. सो सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर के केस में पावर एंगल कर्व में उतना ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता. आपको पता है कि सिंक्रोनस मोटर का इनपुट इलेक्ट्रिकल होता है बट आउटपुट हमें मैकेनिकल मिलता है. ठीक है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज आई एम गोइंग टू डिस्कस फॉर जनरेटर. I'm going to discuss here for
जनरेटर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस जनरेटर से ज्यादा बनते हैं, ठीक है। सी एज यू ऑल नो कि जनरेटर का इनपुट कैसा होता है, इनपुट तो मैकेनिकल होता है एंड आउटपुट इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पॉइंट ए। सो पॉइंट ए पे हमारा मैकेनिकल इनपुट PS1 होता है एंड इज इक्वल्स टू PE1। सो मैकेनिकल इनपुट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल आउटपुट। यहाँ पे एट पॉइंट ए एक्सेलरेटिंग पावर का वैल्यू 0 है। सो एक्सेलरेटिंग पावर क्या होता है, एक्सेलरेटिंग पावर इज इक्वल्स टू मैकेनिकल इनपुट माइनस इलेक्ट्रिकल आउटपुट। So PS1 minus PE1. So this is going to be the accelerating power. So at point A पे accelerating power कितना है, accelerating power is equals to 0, ठीक है। So now अगर हमने सडनली इनपुट को इंक्रीज कर दिया, अगर हमने मैकेनिकल इनपुट को सडनली इंक्रीज कर दिया टू द वैल्यू PS2, पहले PS1 हमारा मैकेनिकल इनपुट था, नाउ हमने इंक्रीज कर दिया अप टू PS2। अप टू PS2 अगर हमने सडनली मैकेनिकल इनपुट को इंक्रीज कर दिया तो क्या हमें सडनली इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा? सो नो, हमें सडनली इलेक्ट्रिकल आउटपुट क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज ऑफ रोटर एंगुलर मोमेंटम। सो रोटर का जो एंगल होता है वो सडनली इंक्रीज नहीं होगा डेल नॉट से लेके तो डेल 1 तक, वो धीरे धीरे उसमें ग्रेजुअल चेंजेस होंगे, धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगा, तब जाके वो इंक्रीज होके अप टू पॉइंट बी पहुंच जाएगा, ठीक है। सो इनिशियली PS1 था, सडनली हमने मैकेनिकल इनपुट को इंक्रीज कर दिया एंड मैकेनिकल इनपुट का वैल्यू न्यू वाला PS2 है। सो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से लेके तो पॉइंट बी तक हमें एक्सेलरेटिंग वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो एक्सेलरेटिंग वैल्यू क्या आने वाला है, एज यू ऑल नो कि एंगुलर मोमेंटम की वजह से आउटपुट हमें सडनली नहीं मिलने वाला है, वो धीरे धीरे मिलेगा। सो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एक्सेलरेटिंग पावर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? बिकॉज मैकेनिकल इनपुट तो PS2 है, ठीक है, मैकेनिकल इनपुट PS2 है एंड आउटपुट धीरे धीरे बढ़ रहा है, आउटपुट ए से लेके बी तक धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। सो PS2 माइनस PE1, अभी ये PE1 नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे PE2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे डेल नॉट का वैल्यू इंक्रीज होगा वैसे वैसे PE1 इंक्रीज हो जाएगा एंड वी आर गोइंग टू गेट PE2 वैल्यू, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू राइट हियर दैट फ्रॉम पॉइंट ए to point B, accelerating power is going to be positive, because mechanical input ज्यादा है electrical output से। So जैसे ही पॉइंट B पे डेल नॉट से लेके डेल 1 तक का वैल्यू जैसे ही पॉइंट B पे आ जाएगा, B पे आ जाएगा, देन PS2 is going to be equal to PE2, मैकेनिकल इनपुट इलेक्ट्रिकल आउटपुट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो स्टिल एक्सेलरेटिंग पावर कितना होने वाला? एक्सेलरेटिंग पावर तो हमें यहाँ 0 मिलेगा बिकॉज मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट दोनों भी सेम हो जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट एक्सेलरेटिंग पावर 0। सो पॉइंट बी पे एक्सेलरेटिंग पावर हमें 0 मिलेगा, बट यहाँ ऑसिलेशंस होने वाले हैं। क्यों ऑसिलेशन होंगे? बिकॉज पॉइंट बी पे हमें मैक्सिमम स्पीड मिलेगा, हमें मैक्सिमम ओमेगा का वैल्यू मिलेगा। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू, जो कि सिंक्रोनस स्पीड से भी ज्यादा है, ठीक है, जो कि सिंक्रोनस स्पीड से भी ज्यादा मिलेगा हमें। सो वी आर गोइंग टू गेट ओमेगा मैक्स वैल्यू एट पॉइंट बी। सो इस वजह से फिर से एंगुलर वैल्यू जो भी एंगल ऑफ रोटर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो एंगल ऑफ रोटर इंक्रीज हो जाएगा, बट यहाँ डी एक्सेलरेशन होगा। क्यों डी एक्सेलरेशन होगा फ्रॉम पॉइंट बी से लेके तो सीधा? बिकॉज इलेक्ट्रिकल आउटपुट इंक्रीज होने वाला है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेटिंग वैल्यू हमें निगेटिव मिलेगा, ठीक है। सो फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी मैकेनिकल इनपुट का वैल्यू अभी इंक्रीज नहीं हो रहा,
अभी इलेक्ट्रिकल आउटपुट का वैल्यू इंक्रीज होने वाला है. सो इलेक्ट्रिकल आउटपुट का वैल्यू इंक्रीज होगा, दैट मीन्स PE2 का वैल्यू इंक्रीज मिलेगा एज कंपेयर टू मैकेनिकल इनपुट. सो वी आर गोइंग टू गेट निगेटिव एक्सेलरेटिंग पावर. सो निगेटिव एक्सेलरेटिंग पावर मीन्स सिंक्रोनस मशीन ये डी एक्सेलरेट करेंगी. ठीक है. सो डी एक्सेलरेशन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी से लेके तो पॉइंट सी तक. नाउ एट पॉइंट सी पे क्या चेंजेस होने वाले हैं? जैसे ही हमने मैकेनिकल इनपुट को सडनली पॉइंट बी तक इंक्रीज कर दिया, सो धीरे धीरे रोटर एंगल का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा. पॉइंट बी से लेके तो पॉइंट सी तक रोटर एंगल का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा. दैट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी डी एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ निगेटिव एक्सेलरेटिंग पावर. सो एट पॉइंट सी पे क्या हमें एक्सेलरेटिंग पावर पॉजिटिव मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है या फिर जीरो मिल रहा है? सो इट इज गोइंग टू बी स्टिल निगेटिव. क्यों निगेटिव? बिकॉज आउटपुट पावर ज्यादा है इनपुट पावर से. सो एट पॉइंट सी वी आर गोइंग टू गेट स्टिल निगेटिव डी एक्सेलरेशन. ठीक है. एक्सेलरेटिंग पावर निगेटिव है. सो देयर इज गोइंग टू बी डी एक्सेलरेशन फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट बी. बट पॉइंट सी पे हमें सिंक्रोनस स्पीड मिल रही है. पॉइंट सी पे सिंक्रोनस स्पीड मिल रही है. नाउ इट इज गोइंग टू डी एक्सेलरेट. सो सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड से अभी रोटर जाएगा. ठीक है. सो हियर इट इज गोइंग टू बी डी एक्सेलरेशन फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट बी. सो जैसे ही पॉइंट बी पे आ गए देन एक्सेलरेटिंग पावर इज गोइंग टू बी जीरो. तो पॉइंट बी पे आते वक्त दैट मीन्स डी एक्सेलरेशन के टाइम पे जो डेल वन पे हमें जो स्पीड मिलेंगी, अभी हमें ओमेगा मिनिमम मिलने वाला है. ठीक है. एक्सेलरेशन जब हो रहा था तब हमें मैक्सिमम मिल रही थी, बट नाउ इट इज गोइंग टू बी मिनिमम स्पीड एट पॉइंट बी. सो क्या बी एक स्टेबल पॉइंट है? सो नो, इट इज नॉट अ स्टेबल पॉइंट. इट इज स्टिल एन ऑसिलेटिंग पॉइंट और डेल का वैल्यू फर्दर डिक्रीज होगा ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. सो नाउ इट इज गोइंग टू फर्दर डिक्रीज और डिक्रीज होके एक ऐसे पॉइंट पे जाके वो सेटल हो जाएगा जहां एक्सेलरेटिंग पावर हमारा जीरो मिलेगा. ठीक है. सो फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए या फिर ए डैश हम बोल सकते हैं, इट इज अ न्यू स्टेबल पॉइंट. सो ए पे न जाके ए डैश पे ही रुकने वाला है हमारा सिंक्रोनस मशीन. So this is going to be the new stable point, and here there is going to be no acceleration, no deceleration, and accelerating power is going to be zero at that individual point. ठीक है. ये तो हमने पूरा प्रोसेस देख लिया कि क्या हो रहा है. Now coming to our equal area criteria. So acceleration का जितना भी एरिया आएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन का जितना भी एरिया, दिस इज गोइंग टू बी acceleration area. So I'm going to draw here. See, this is going to be our acceleration area और deceleration area भी हमें find out करना है. So this is going to be deceleration area. See, if area A1 is equals to area A2. area A1 क्या है? area A1 is nothing but accelerating area. और एरिया A2 क्या है? इट इज डी एक्सेलरेटिंग एरिया. अगर एरिया A1 एरिया A2 के बराबर आ जाए देन सिंक्रोनस मशीन इज गोइंग टू बी स्टेबल. अगर एरिया दोनों भी डिफरेंट हो जाए, सो इफ A1 इज नॉट इक्वल टू A2 देन इट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल मशीन. इफ A1 is equals to A2 then synchronous machine is going to be स्टेबल. ठीक है. सो एक क्वेश्चन आता है, अगर A1 और A2 दोनों भी इक्वल है तो क्या सिंक्रोनस मशीन अनस्टेबल हो सकती है? सो यस, इट कैन बी अनस्टेबल. क्यों? अगर C पॉइंट पे आ गए. ठीक है. इफ वी कम एट पॉइंट C और अगर पॉइंट C पे एक्सेलरेटिंग पावर जीरो रहा, अगर पॉइंट C पे एक्सेलरेटिंग पावर अगर जीरो रहा देन देयर विल बी नो ऑसिलेशन फ्रॉम दैट पॉइंट
और मशीन अनस्टेबल हो जाएंगे बिकॉज del 2 का वैल्यू इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री. It cannot be greater than 90 degree. It should be less than 90 degree. So अगर दोनों भी एरिया सेम होंगे A1 और A2 and still our system can be unstable because it is going to take a new steady state point whose angle is greater than 90 degree. ठीक है. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो भी हमने यहाँ पे ऑपरेशन देखा. सो लेट्स मूव टू आवर ऑप्शंस. सो ऑप्शन ए बी सी डी. सो ऑप्शन बी आप देखिए. सो ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं दैट बोथ द एरियाज आर नॉट इक्वल. सो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग. फ्रॉम ऑप्शन सी यू कैन सी यहाँ पे कुछ भी दिया गया नहीं है. ठीक है. हियर nothing is given, that means this is also going to be wrong. So coming to option A and D. So A और D में से आप देख सकते हैं that there is going to be certain difference in the area. So A1 में आप देख सकते हो A1 और A2 from option A that areas are not similar type. Areas are different, but in case of option number D you can say that area A1 and area A2 are looking similar. So option number D is only correct answer for this. So I hope आपको समझ में आया होगा. So चलिए next question की ओर. So a thyroid type lightning arrestor dash. So options are blocks the surge voltage appearing in a line, absorb the surge voltage appearing in a line, offers a low resistance path to the surge appearing in line, and last one is return to the surge back to the source. So these are the options. So we have certain information regarding lightning arrestor. So a thyroid type lightning arrestor के बारे में कुछ information दिया गया है. So a thyroid lightning arrestor has a combination of inverse resistance characteristic and gap. ठीक है. Thyroid arrestor is the most common and is mostly used for the protection against high dangerous voltage and offers a low resistance path to the surge. ठीक है. So lightning arrestor का काम क्या होता है? Lightning arrestor का काम होता है that it offers a low resistance path. अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई है हमारे ट्रांसमिशन लाइन पे, सो लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है लो रेजिस्टेंस पाथ सर्ज को ताकि वो लो रेजिस्टेंस पाथ के थ्रू ग्राउंड में चला जाए. ठीक है. एंड इट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ. व्हाई? बिकॉज अगर वोल्टेज डबल हो गया देन करंट इज नॉट गोइंग टू बी डबल, करंट इज गोइंग टू इंक्रीज 12.6 टाइम्स. ठीक है. And the last one is it possesses non-linear characteristic. So these are the information regarding thyroid lightning arrestor. So चलिए हम find out करते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है. A thyroid type lightning arresters offers a low resistance path to the surge appearing in a line. So option number C is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now moving towards our last question. So our last question is a 66 kV system has string insulator having 5 discs and the earth to disc capacitance ratio of 0.10. The string efficiency will be dash. So these are the options. Now what we have to do here, आपको one by one V1, V2, V3, V4, V5 find out करने हैं and you have to substitute in the formula. So formula कैसा है? Formula is nothing but efficiency. Efficiency is equals to V total. That means V1 plus V2 plus V3 plus V4 plus V5. Because 5 डिस्क दिए गए हैं ना. So up to V5 you have to calculate voltages and then N. N is the number of disc into V. So जो भी V का वैल्यू मैक्सिमम आएगा दैट यू हैव टू कंसिडर. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू कैलकुलेट वन बाय वन वैल्यूज. सो V1 का वैल्यू कितना दिया गया है? सो यू हैव टू कंसिडर V1 एज V
So I am going to consider v1 is equals to v. ठीक है, एंड सिमिलरली वी हैव बीन गिवन k का वैल्यू, या फिर अगर आप उसे m कंसिडर कर सकते हो तो वो भी कंसिडर कीजिए. सो अर्थ टू डिस्क कैपेसिटेंस हम उसे k से डिनोट करेंगे. ठीक है, सो k इज इक्वल्स टू 0.1. ठीक है, सो v1 इज इक्वल्स टू v, v2 इज इक्वल्स टू, v2 का फॉर्मूला क्या आने वाला है, v2 इज गोइंग टू बी 1 प्लस k v1. v3 का फॉर्मूला क्या है, v3 इज नथिंग बट 1 प्लस 3k प्लस k स्क्वायर इंटू v1. ठीक है, नाउ v4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6k प्लस 5k स्क्वायर प्लस k क्यूब इंटू v1. v5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10k प्लस 15k स्क्वायर प्लस 7k क्यूब प्लस k पावर 4 v1. ठीक है, सो इसमें आप 1 बाय 1 k के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड v2 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. सिमिलरली v3 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, v4 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए एंड v5 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. एंड आफ्टर ऑल दिस यू हैव टू सब्स्टिट्यूट in this equation number 1. So आप v1, v2, v3, v4, v5 सब सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड जो भी v का मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड यू कैन बी एबल टू फाइंड आउट इफिशियंसी. सो इफिशियंसी का वैल्यू आता है फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देन यू आर गोइंग टू गेट ऑप्शन नंबर सी ओनली. सो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. एंड वन मोर टाइम आई एम सो सॉरी फॉर नॉट पोस्टिंग एनी वीडियोस. बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, जो मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट किया था वो 30+ डेज हो चुके हैं. सो आई विल ट्राई टू पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस. सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी आप प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाए. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. सो थैंक यू गाइज.